I'm going to show the same video again as Deepak sir has asked, requested. Ma'am, I said about the second video because it was not coming clearly. Okay. Okay, ma'am. Simple videos. Is there? Minimized to optimize. Acha, okay. Just, yeah. You know, children. Good evening, teachers and principals, sir. My name is Srishti Kumari from class 7E, roll 14, admission number 6591. Today I am going to make a video on stethoscope. I have Blockages. rubber tubes, Some scissors, blocks are there. tongue cleaner, medicine top, Not visible, ma'am. tape, Visible. Fevikwik, and a Not band. visible. So let's start. Again, Black something is screen coming in that front of is the video. showing. Tongue cleaner. One Black. blockage Not is clear. there. Yes. Now it's okay. I have taken Now it is okay. Okay, It's thank you. okay. Thank you. medicine top Thank you. and made a hole with this help of scissor, and then we will insert, see how the stethoscope is looking, and then we will I have stick this medicine top, and then we will cut this balloon in the half, and I had cut the balloon in the half and then stick on it and with the help of tape, and here my stethoscope is ready. Yeah. This is and we as a teacher must be having अपने gallery में जाएंगे तो ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलेगा, and we will appreciate and wonder the creativity of children कि घर बैठे भी हम लोग बच्चों को कैसे infuse और motivate कर सकते हैं, how to motivate them to take the things that is scrap, जो ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत easily available, no cost expended, खर्च नहीं है, लेकिन they are doing it. While doing is learning. अगर हम लोग करते हैं तभी हम लोग सीखते हैं, देखने से नहीं होता. There are wonderful videos all around in the YouTube पर भरे पड़े हैं, लेकिन when they do it then they will find out कि भाई ये बेस को कहाँ से कहाँ तक में किसका कलर कैसे चेंज होगा. Then when they do it they will remain they will retain it and it will continue in their mind for for future use कि अपना आने वाले टाइम में उसको इस्तेमाल करेंगे. चलो आप हम लोग देखते हैं हमारा I'm going to show my presentation now. Thereafter one activity will be again there. I hope कि हम लोग कर पाए आज, but let's begin this. I'm sharing my screen again for my PPT. There are a number of things that we can do.
that we can motivate children to do. तो दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. हम लोग बात की उस छोटे से बच्चे की कि भैया हम जान गए कि व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. फर्स्ट बिफोर वी implement it, we must know how to, what is experiential learning. डेविड कॉल्ब एक बड़े एडुकेटर हैं और उनकी किताबें और बहुत सारी बातें हमेशा हम लोग एज अ टीचर और बीएड के क्लासेस में भी हमेशा उनकी बात होती है. और उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में कहना है is based on the principle of learning by doing. Just as I showed you the video, the children were learning by doing, and not only while doing that, they are learning how to film it, how to bring the clarity of what they are doing, the activity. Focuses on developing skill in the student through real life experience. Of course, this is the real life experience. Like yesterday, I had a disastrous session. एकदम बहुत गड़बड़ी हो गई. लेकिन एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आई हैव अक्वायर्ड अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि भाई ये हो सकता है. आई हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग माय स्किल कि ये दोबारा ऐसी गलती ना हो. Is the way of learning in which it is the learner who guides the learning process, experiences, observes, reflects, and implements it. Dear colleagues, my dear participant, learned people of this session, कि earlier it was like teacher centric education, but हम जो बताएं वो बच्चा सीख गया, that's it. Nowadays it is, ये workshop itself is an example. This workshop itself is an example that now the focus is on learner, not we teachers. हम लोग को ये हम लोग को नहीं बोला जाएगा कि आपके कन्वीनियंट से काम चलेगा. आज आपका वर्कशॉप नहीं होगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट काम है. नो, क्योंकि ये जरूरत है. किस लिए जरूरत है? हम लोग को अपडेट करना है खुद को. Why do we need updation? Because we need to bring change in the student learner को सेंटर में रखा गया. इसीलिए हमारी सहूलियत का ध्यान थोड़ा कम रखा जाएगा. क्या रखा जाएगा कि लर्नर क्या सीख रहा है. तो लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द वे ऑफ लर्निंग व्हिच द लर्नर विल गाइड द लर्निंग प्रोसेस. अब बच्चे ने, हमने एसिड बेस सिखाया, लेकिन अब उन्हें फॉर्मूला भी बता दिया, लेकिन he is not knowing the chemical symbol. अब जब वो chemical symbol नहीं जान रहा है, so now it becomes our duty to go back to that level and teach the student before coming to that level. इस लेवल पर हम लोग को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. उस वहां पर सिखाने के बाद ही वो यहाँ पर आ जाएगा. आजकल के सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे पढ़ाई से भागते हैं. क्यों भागते हैं? कि भाई पढ़ाई उन्हें डिफिकल्ट लगता है. क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि जो जिस क्लास में वो हैं उस क्लास का नॉलेज नहीं है. नॉलेज यहाँ होना चाहिए. लाइक सपोज कि इंग्लिश का नॉलेज उस बच्चे का है, ही और शी इज इन स्टैंडर्ड 8 और 7, और उसका इंग्लिश का नॉलेज है क्लास 4 का. साइंस का नॉलेज उसका है क्लास 3 का. सपोज कि मैथ्स का उसका नॉलेज है क्लास 4 का. ही इज इन स्टैंडर्ड 6 और 7 और 8, लेकिन उसका नॉलेज जो है काफी नीचे में है, और उस चीज को लाना हमारा बहुत जरूरी है. उस लेवल को ऊंचा करना. तो हमारा क्या ड्यूटी? लर्नर, क्योंकि लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन है, so we have to go back to that level of the students and upgrade him to bring this to this situation, this position, so that learners start taking interest in the studies. कितनी बारी हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है, since we are teacher in this profession for last many years, कि कुछ बच्चे क्लास 6 तक बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं. ऑल ऑफ सडन they start doing well in 6, 7 and 8 और आगे चले काफी अच्छा करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? What do you say? Why it happens? Anyone? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, what happens? अगर experience context में हम लोग बात करें, this thing in the light of experiential learning,
why it happens कि few children do good in later and they मतलब vice versa भी होता है, इसका उल्टा भी होता है. तो the basic point is that कि या तो लर्नर ने खुद मेहनत की या फिर उसे ऐसा गाइड मिल गया. जब हम लोग टीचिंग की बात करते हैं ना, तो हम अगर अपने स्कूल डेज में जाएं तो देयर वर ग्रेट टीचर्स एंड देयर वर नॉट सो ग्रेट टीचर्स. तो हमें ये सीखना है कि क्या नहीं सिखाना है. जब हम लोग बच्चे थे और पढ़ रहे थे और किसी टीचर का क्लास बोरिंग लगता था, तो इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर क्लास आल्सो कि भाई उन टीचर ने जो किया वो हमें नहीं करना है. दैट इज क्या हमने सीखा कि क्या नहीं सिखाना है ना. तो ये सब बड़ा ही इंटरेस्टिंग हम लोग का जर्नी बना देता है. बहुत सारा एनेक्डोट एंड स्टोरीज वगैरह हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं दैट वी कैन शेयर करें आपस में. तो द वे ऑफ लर्निंग इन दिस इन व्हिच इट इज द लर्नर हु गाइड द लर्निंग प्रोसेस कि अगर वो नहीं सीखा है तो हमें उसके पास जाना है, उसको ऊपर लाना है. Experiences, observes, reflects and implements it. Just like you have seen the video of that girl कि उसने उस लर्निंग प्रोसेस में उसने एक बनाना सीखा, स्टेथोस्कोप सीखा, उसने ऑब्जर्व किया कैसे स्टेथोस्कोप होता है, उसने रिफ्लेक्ट किया कि भैया उसका कैसा होना चाहिए, फिर उसको यूज करके देखा, उसको इम्प्लीमेंट, उसने अपने जो स्किल है उसको यूज करके देखा कि ये हो सकता है, इम्प्लीमेंट किया. शी इज सक्सेस, शी हैज कॉन्फिडेंस. अब ये भी है कि हम सिखा तो दे बट डजंट बिलीव इन कंपार्टमेंटलाइजिंग ईच सब्जेक्ट. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक ये है ना कि ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड. एक दो वीडियो और था मैं दिखाना चाहती हूँ बट मेरे को लगता है कि वी डू नॉट हैव मच टाइम. तो उसमें बच्चे ने क्या दिखाया है कि बहुत सारा उन्होंने काइट्स बनाना सीखा है डिफरेंट. Ma'am, send the attendance sheet, ma'am. Time is up or what? Okay, I'm sending it. It is there in Yes, the ma'am. group also. It is Yes, there ma'am. in the group also. Okay. Doesn't believe all the subjects are interlinked and it depends upon the learner what he takes away from his experience. Now this is the workshop और इस workshop में different learner, different participants का different takeaway होगा. Whether they are muted or not there, but they are gaining something or the other thing. डिफरेंट लोग किस तरह से बोल रहे हैं, हाउ दे आर बिहेविंग, कुछ ना कुछ तो वो सीख करके ही जाएंगे. लेकिन सबका सीखने का रेट और एक्सटेंट और क्वालिटी क्वांटिटी सब डिफरेंट होगा. यू एग्री? Yes, Ritu ma'am. Yes, definitely it is Yes, the way ma'am. कि हम लोग क्या लेना चाहते हैं. हम बच्चों के बीच में हम हमेशा ये देखते हैं कि you can take the horse to the river but you cannot make it drink until it wants to drink. कि भाई बच्चा जब तक सीखना ना चाहे हम सिखा नहीं सकते हैं. तो उस प्रोसेस को कि वो सीखने का प्रोसेस शुरू हो, कैसे शुरू होगा जब हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. तो ईच लर्नर विल हैव अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस. द लर्नर प्लेज अ वाइटल रोल इन असिस्टिंग हिमसेल्फ. अब बच्चा सीख लिया तो उसमें खुद को कहाँ पाया, वो उसका खुद का असेसमेंट होगा एंड उस असेसमेंट के बेसिस पर ही विल मूव फॉरवर्ड. Now this is as well the experiential learning can be defined as a sense of सेंस मेकिंग प्रोसेस. सेंस मेकिंग में इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाने चाहिए. ऑल द सेंस ऑर्गन मस्ट बी एक्टिव सो दैट इट इज वी आर अडेप्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन में ऑल सेंस ऑर्गन. सारा चीज हम उसको टच कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं, उसको इनहेल कर पा रहे हैं. देन इट विल रिटेन इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जो हमारे इनर वर्ल्ड है, जैसे कि अब उस बच्चे का इनर वर्ल्ड कुछ और था जब उसको ड्राइंग बोला गया बनाने के लिए और वो आउटर वर्ल्ड से रिलेट नहीं कर पा रहा था, इन्हीं दोनों का जो इन्फ्यूजन होगा दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इट इज जस्ट द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द होल पर्सन थ्रू थॉट्स, फीलिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी. दिस इज अ पार्ट दैट इज. तो इसमें इसका 4th स्टेज होता है. हम लोग देखे होंगे कि छोटा बच्चा एक बार बार पंखे के पास जाता है और उसमें उंगली डालने की कोशिश करता है. तो हम लोग बोलते हैं कि मत करो, डोंट, यू विल बी हर्ट. लेकिन बच्चा नहीं सुनता अनलेस कि उसका एक दिन हर्ट ना हो जाए. फिर देखिए दोबारा वो पंखे के पास जाता नहीं. क्या हुआ इस केस में कि he has learned by doing.
तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो होता है, नॉट ओनली बाय रीडिंग और ऑब्जर्विंग, इट नीड्स टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्सपीरियंस बाय फीलिंग इट। एक बार चोट लग जाए, एक बार जल जाए, तो फिर पता चलेगा कि वो दोबारा उस चीज को करना नहीं चाहेगा। इट मींस ही हैज दैट आइडिया कि ये करने से ये हो जाता है। तो आइडिया इज टू इमर्स इन द एक्सपीरियंस एंड लर्न। स्टेज 2, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस कॉन्क्रीट है, ऐसा होता है, उसने जान लिया। नाउ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि अब वो वैसा नहीं करेगा। This is the second stage where the learner reflects at the situation before forming any opinion, कि भाई उस जगह पर जाने से पहले उसने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया। The learner must reflect upon the present by connecting it to his past experience. अब past experience से क्या था कि वो काम करने से क्या फायदा और नुकसान, what is the advantage and disadvantage of doing that work, that is reflective observation. Third stage, abstract conceptualization. The learner create theories to explain his experience. अगर हम किसी बच्चे को ट्रेन की जर्नी करा के ले आए, तो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। वो हो सकता है एक चीज को ऑब्जर्व करे, हो सकता है काफी चीज को ऑब्जर्व करे। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट लर्नर की उसके एक थ्योरी उसके दिमाग में बन गया, और उस थ्योरी के बेसिस पर वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। लाइक उस बच्चे के दिमाग में एक थ्योरी बैठ गई कि भाई फ्लावर 5 पेटल्स विद ग्रीन स्टेम होता है, तो 5 पेटल्स विद, तो वो उसी को लेकर के चलता चला जाएगा। इन दिस स्टेज द लर्नर गैदर एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉज कंक्लूजन। समटाइम्स इट मे चैलेंज लर्निंग बाय थिंकिंग। अब तो वो बच्चा वहां पर तो पहुंच गया, लेकिन अब क्या हुआ कि उसको पता चला कि नहीं भैया, फ्लावर तो और तरह के हो सकते हैं, सिर्फ 5 पैटर्न्स वाला। जब तक वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ेगा, दैट इज उसने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसने बना लिया कि टीचर ने जैसा बताया था, लेकिन देयर विल बी अ टाइम एंड ही विल रियलाइज कि एब्स्ट्रैक्ट कि ये चीज जो है इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो वो उसके थिंकिंग को चैलेंज करेगा, उसके लर्निंग को चैलेंज करेगा कि नहीं, इससे आगे भी दुनिया है। Active experimentation. This is the final stage where the learner applies what he has learned by learning by doing. Just like the child who, जैसे कि उस लड़की ने एसिड बेस के बारे में जाना, उसने उसको अप्लाई किया और उसने लर्निंग बाय डूइंग सीखा। लेकिन ये जो 4 स्टेजेस है, किसी भी स्टेप पर आए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर लेती, ये नहीं कि बस पहला सीखा उसके बाद ही किया। हो सकता है कि उसने कहीं से देखा होगा, अच्छा ऐसे ऐसे करने से ये होता है, तो पहले ही उसने एक्टिव एक्सपेरिमेंट कर लिया। Then she went to the abstract conceptualization. Then she went to the concrete thinking कि concrete कैसे होता है। तो मतलब ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, लर्निंग किसी भी, लेकिन ये 4 स्टेज एक लर्नर को क्रॉस करना ही पड़ेगा in order to have a learning, experiential learning. The learner can enter a learning cycle at any stage, but must go through all the 4 stages to complete his learning cycle. You know, benefits of experiential learning. So as I said that it basically focuses on the learners, not on the teachers, guide. हम लोग बस facilitator है। अभी थोड़ी देर पहले अवधेश सर ने भी कहा था और दीपक सर ने भी कहा था कि we are teachers। अब टीचर्स नहीं है, हम लोग बस फैसिलिटेटर्स हैं। हम बच्चों को जो उन्हें चाहिए उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या उसका रिक्वायरमेंट, व्हाट इज हिज और हर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर facilitating them with the things that we know. So what is the benefit of experiential learning? To build competencies, merging theory with practice. A theory is like that in video, that a girl has studied some theory in the book and she put it in the practice. Learning by experience is far more effective and long lasting. There हम लोग मानते हैं कि हमारे क्लास में 50 बच्चे 50 बच्चे के अराउंड हमारे क्लास में रहते हैं, लेकिन कितने बच्चे ये काम करके दिखाते हैं? 50%, 60%, not all. Agree? Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. What do you think? Yes, ma'am. क्या ये जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग है, क्या सारे बच्चे कर पाते हैं? No, ma'am. नहीं No, कर ma'am. पाते हैं, और Only इसी few वजह से, students. हाँ, इसी वजह से वो 50%. थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है
and they are not interested in learning, they are experiencing something else. सभी लोग का लेने का, सभी लोग का इंटरेस्ट अलग है ना. मल्टीपल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ते हैं, कई बार डिस्कशन भी हुआ है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, हर बच्चे का थिंकिंग चॉइस डिफरेंट होता है. तो वो हो सकता है साइंस में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही स्लो लर्नर, जैसे दीप्ति मैडम ने कल कहा था कि स्लो लर्नर आर नॉट, इट्स नॉट दैट कि दे आर नॉट लर्निंग, दे आर लर्निंग बट समथिंग that needs special attention, कि उसको रिपीटेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है. तो ये जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग है, it has to be brought into the students who are not experiencing it. मतलब अब हमें मोटिवेट करने का भी, थोड़ी देर पहले मोटिवेशन में अवधेश सर बता रहे थे कि भाई मोटिवेट कैसे किया जाए. तो these are the videos that can be posted in the group, कि जो उस बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है वो सारे बच्चे सोचे कि अच्छा वो कर सकता है तो हम भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखें. तो लर्निंग, इसका बेनिफिट ये है कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इज फार मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग. और इसमें the other benefit that offers students to offer opportunity to students to think freely and operate without losing their confidence. हमारे ऑनलाइन टीचिंग में एक सबसे बड़ा रिवोल्यूशन ये आया है कि जो बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो भी अगर वीडियो बनाने के लिए बोला जाए ना तो दे कम फॉरवर्ड. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्टेज पर प्रोग्राम, दे वर हैविंग द स्टेज फ्राइट एंड नाउ दे आर रिलीजिंग देयर वीडियोस ऑन यूट्यूब. तो बच्चों को ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमारा एक ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू थिंक फ्रीली एंड ऑपरेट विदाउट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड ब्रांड. और अगर हम खुद अच्छा करते हैं तो फुल्ली सेल्फ मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेट होते हैं हम लोग, एंड वी टेंड टू एक्सप्लोर मोर. So this is what 4 different parts of experiential learning, that is concrete experience, agar reflective observation, conceptualization and active experimentation. This is the short this okay. Now how, अब ये तो हो गया कि experiential learning हो सकता है, हम लोगों ने आसपास का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द क्लास, डिफिकल्ट तो हो सकता है. लेकिन यू नो थोड़ा डर भी लगेगा, भाई एक बच्चा पूरा बच्चे सारे कियोस्क बचाएंगे, हमारा अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा, यू नो डर भी लगेगा, कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा. लेकिन हो तो सकता ही है डेफिनेटली, तभी तो इसके बारे में एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द बज़वर्ड. आई एम टेलिंग यू, इट इज द बज़वर्ड. ये जो एजुकेशन, जो टीचर्स कम्युनिटी और एजुकेशन के फील्ड में जो लोग हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत जोर शोर से इसको प्रोपागेट कर रहे हैं. क्यों प्रोपागेट कर रहे हैं? आखिर इसकी कुछ तो अच्छाइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं इस वजह से. तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास में? आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीज नया होता है तो वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है. इट इज टास्क, मतलब खुद को बहुत मोटिवेट करने का जरूरत पड़ता है. एंड वी मे थिंक कि क्या जरूरत है इतना पेन लेने का, इतना कष्ट करने का, बट आई एम टेलिंग यू इट ऑल वर्क. ये सारा आपको लगेगा कि once you have taken the pain, you will feel that there is the worth of taking all the pain when you will see the smiling face, the gratitude in their smiles. You are muted, ma'am. To ma'am, unmute yourself. वो काफी देर से मैं म्यूटेड हूँ क्या? Yes. No, ma'am. As you have started the video. Just now, Only just 2 now. minutes. Just now ना? 2 minutes. 1 minute. अच्छा Yeah, अच्छा, just I thought कि मैं काफी देर से म्यूटेड हूँ, बोले जा रही हूँ. 1 minute were- just. Really? No more. I hope I understand there is compulsion that you all have to stick here. No, your I'm- session is going very long. Your session is It this was session. very effective, ma'am. It was very Thank good. you. I just wish कि Really, हम लोग very कुछ effective. बात करके ही जाएं. Thank you, ma'am. हाँ, तो हमारा अभी ये चल रहा था. अच्छा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? मेरा स्क्रीन शेयर बंद हो गया लगता है. Are you able to see my screen? No. No, Yes. no.
No. No, ma'am. No. Share your screen again. No, ma'am. हमारे पास टाइम कितना बचा है? हमारे पास टाइम नहीं बचा है। 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. तो 14 minutes. 14 minutes. 9 minutes. शेयर करना है ना? 5 1 minutes. 4. Ma'am, 14 what minutes. then it- Okay. I'm sharing the link first. I'm sharing the link first. Okay. मैंने लिंक क्लियर कर दिया था मैम। कर दिया था For ना? attendance. Thank you. Then it's okay. Then it's I need not share the link. Then I need not share. Okay. So Yes, ma'am. Already it is filled. Thank you, Pratima ma'am. I have also already filled. Okay. It was already there. So we were talking about experiential learning कि उसको implement करने के लिए हम लोग क्लास में implementation जब कोई भी काम होता है it is difficult, but as I was saying कि no pain no gain, and the thing I'm telling you it is all worth. थोड़ा सा पेन लेने के बाद जो learning, if you derive pleasure in learning, तो इससे अच्छा, and to see the gratitude on the face of the children, तो लगेगा कि भाई हम टीचर हैं और हमने जस्टिफाई किया हम जो भी काम कर रहे हैं। तो और बच्चों के साथ जो है ना वो काफी टाइम तक रहता है। तो अच्छे टीचर्स है ना वो उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं, और जब वो ग्रेटिट्यूड और तो आप जब मिलते हैं तो थैंक यू बोलते हैं तो the feeling that is unparalleled. So let's motivate ourselves to bring this experiential learning in our classroom. Hopefully टीकाकरण शुरू हो गया है, and soon enough we are going to resume our school work and we will be meeting the children. So these things has to be implemented in the classroom. So I was just discussing कि implement किया कैसे जाए, how to implement it. तो मैं एक स्लाइड है, जस्ट आई एम शेयरिंग इट, कि अगर कोई एक टॉपिक ले लिया जाए, आई वाज थिंकिंग टू ब्रेक द रूम एंड देन अलाउ यू टू मेक वन प्रेजेंटेशन वेयर यू कैन जैसे कि अगर फन विद मैग्नेट्स क्लास 6 का चैप्टर है या फिर कोई सा भी चैप्टर हम लोग ले लेते हैं, तो उसको किया कैसे जाए कि क्लास में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ओके, तो फन तो बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं। प्ले वे मेथड इज वन ऑफ द एक्सीलेंट मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो अगर उनके पास मैग्नेट तो वो लेकर के आते हैं और मैग्नेट से लोग खेलने दीजिए, allow them to play कि what kind of magnet they can have it, or you are the facilitator, so you can provide them with the magnet from the science lab, or you can bring of your own। एक बार आपने कुछ टूल्स अगर खरीद लिया है तो that will benefit। तुम कुछ लोग है ना अपना सामान कुछ लेकर के जाते हैं क्लास में to show the children, और उनके क्लास में बच्चे ज्यादा enthusiastic होते हैं। तो how you can do frame a chapter, frame a lesson plan on the basis of experiential learning। सबसे पहले कि experiential learning में allow the children to form their own ideas। कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड टूल्स क्लास में जो कि ऑब्वियसली जो कि हमारे पास अवेलेबल है वो हम दिखा सकते हैं और उनको अलाउ कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, लेट देम स्पीक, लेट देम थिंक एंड लेट देम रिफ्लेक्ट, लेट देम create their own ideas and allow them for active experimentation। तो ये सारा चीज अगर हम लोग डाल देंगे कि भाई एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या भी कॉम्पास बनाने के लिए दे दीजिए, सिंपल मटेरियल लाइक नीडल और बार मैग्नेट से क्या होता है, मतलब जैसे कि वो स्टेथोस्कोप उस बच्ची ने बनाया, दिस वाज वेरी सिंपल। क्रैप, सारा घर में जो क्रैप था उसी को उसने यूज किया। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द क्लासरूम। तो दिस इज, एंड अगेन आई वुड से सब लोग इतनी सारी कहानी कहने के बाद भी दिस इज ओनली द सजेस्टिव लिस्ट। सब लोग का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का और इट इज गाइडेड बाय द टीचर, और कैसे वो सिखाना चाहते हैं इट डिपेंड्स ऑन देयर वे। तो अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग में स्ट्रैटेजीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट इज रोल प्ले,
कल उन्होंने बताया था कि रोल प्ले क्या होता है, देन फील्ड ट्रिप, फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप खुद उन लोग अलग से फिल्म दिखाएं या फिर डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, वीडियो प्रोजेक्ट्स, गेस्ट हम लोग किसी दूसरे, हर दिन हम जाते हैं अपने क्लास में, we can do that. We bring other teacher, surprise. I'm not going to teach you today, now this teacher is going to speak for you or teach you. So वो guest speaker, they fascinate, they changes the spice of life. You know, portfolios अलग अलग चीज का के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके पोर्टफोलियोज तैयार करें, आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज बनाए, ग्रुप लर्निंग बाय स्टूडेंट, मतलब एक ग्रुप बना के लर्निंग हम लोग, ये सारे लोग करते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि हम लोग कितना उसमें पेन लेते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, अब सबसे इंटरेस्टिंग, ये सबसे इजी चीज है और बहुत ही इफेक्टिव है, पीयर लर्निंग। यू नो, यू अलाउ द स्टूडेंट टू टीच योर फ्रेंड, टीच हिज और हर फ्रेंड, कि जो बच्चा पीछे है उसको आगे लाने की तैयारी की जाए। आप उसका है जो ज्यादा कैपेबल है, जो ज्यादा हेल्प कर सकता है, ब्रिंग दोस चिल्ड्रन फॉरवर्ड एंड make them work to all the students who need their help. So these are the things which helps in this experiential learning. तो basic question क्या होता है experiential learning में? क्या आपने नोटिस किया, अगर मैग्नेट को कर रहे हैं या फिर एसिड बेस पढ़ा रहे हैं या फिर हीट के बारे में पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वो हालांकि देख नहीं सकते ऑब्वियसली, लेकिन क्या डिड यू नोटिस दैट, व्हाई डिड दैट हैपन? साइंस इज बेसिकली अबाउट asking question why. So did you notice that, why did that happen, have you seen that happening in the class, क्यों होता है वैसा, और क्यों उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? These are the question, basic question for experiential learning. अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग में स्क्रीन शेयर बंद हो गया, ओके। I think I'm running out of the time, and again after some time we'll be having the other session. So I am okay. So rather I should conclude experiential learning में आपको क्या करना है. Self motivation is the most important part, and all that is required is required. जो हमें जरूरत है उसकी जरूरत हमेशा पड़ने वाली है. The traditional way of teaching must be infused with the modern way of teaching, this experiential learning, कि बच्चों में कैसे इंटरेस्ट जगाया जाए, कैसे उन्हें पढ़ाया जाए कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिल जाए, and we evolve ourselves as a very excellent teachers. I hearty thanks to everyone for listening. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Time is Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. For giving us. Thank you. Thank you, ma'am. Your session Thank you, was ma'am. very informative. Thank you. Thank you, This Ritu ma'am. session was wonderful. Very nice. Yesterday we won't able to. Wonderful, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Wonderful ma'am. session. Nice presentation, ma'am. Thanks a lot. Excellent. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Good day, ma'am. And I was Good day, keeping my ma'am. Have a fingers nice day, crossed. ma'am. Now I have my fingers like this. With your cooperation, No wonderful cross for people. me. Love to be with you. Love to be with you. No, I have crossed for me. You know, Love you, learning is a continuous process, and we will keep on learning. और ये कितना भी हम लोग बोले, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलता है एक दूसरे से मिलने का, इंटरेक्ट करने का. दो इंटरेक्टिव हो नहीं पाता है ऑनलाइन में. I wanted to make interactive session yesterday that backfired, एकदम जबरदस्त backfire हुआ. तो इंटरेक्टिव सेशन थोड़ी सी मुश्किल है. Everything has its limitation. जैसे हमारी लिमिटेशन है, वैसे सारी चीज की कुछ लिमिटेशन है. And I hope that Yes, you will have a So thank nice you for bearing presentation, with me. Ritu ma'am. Thank you for bearing with me. Thanks, ma'am. Thanks, madam. Very good. I am here. You may please leave. Thank you. Since I have started it, it's going to be over. Thank you. You have to join the other session. I thank you as subject expert, sir, Bindu Shekhar, sir, and all the present Yes, here. yes, thanks. Thanks, madam. You told you told that no pain, no gain. There is a word here, Yes. self-efficacy. We Yes. can do, we can accept this challenge
and we can implement, and Yes, sir. we can learn by from the students, from others, from other teachers, and I am learning from you all. I have noted many points what you told just now, how we will motivate to the students. For the motivation is also essential for us. Yes. Okay, Yeah. self-efficacy, motivation, these all points are very good, and let them let them do any work freely, so that they will learn by doing. These Yes. all points you described in this, and marvelous point. I think we will implement this. Implementation is very important. Very important. And That is important. interaction is also very important. Here we interacted with each other, we talked with each other, and we learned from others also. Yes, sir. Thanks Yes, a sir. lot for. Thank you, sir. Thank you. I am logging. I'm ending the session. Thank you for bearing with me, all of Thank- you, and Thanks, hearty ma'am. thanks to everybody. Thank you. Thank you, ma'am.